हमने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं चैप्टर 6 के। आज हम चैप्टर 6 को आगे डिस्कस करेंगे और आगे जो बचे हुए कंसेप्ट्स हैं, बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया था। एक्चुअली वो का लास्ट वाला वीडियो काफी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। तो नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन नंबर 26। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 दिख रहा होगा। यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 26. I'm reading the question so that you will be understanding nicely. So once again, be with me. I'll be continuing with the question and I will be solving this question. So question says, as you are seeing here, question number 26, a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. And second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. And the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? So now I hope you understood the question. So I'm writing, as you know, today Diwali is there, so you will find some cracker sound also in background, but no problem, we'll be continuing because we are not having the sufficient time, because we want to complete the syllabus. The exams are coming. So I'm writing the solution number 26. So I'm suppose let the length of the shortest piece, or shortest piece, or we can say I'm writing shortest piece of board be x centimeter. Okay, so therefore we can say that second length should be equal to, and this is the first length, so second length I'm writing, see it's very clearly mentioned, second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. So this will be x plus 3 centimeter. This is second length. And now third length. Third length will be twice as long as the shortest. So I'm writing third length is equal to 2x centimeter. We are knowing perimeter, we can say, or total length we can say of the board, or we can say total length. Do not write perimeter, it will be giving you confusion. So total length of all the 3 pieces should not be more than 91 centimeter. Okay, so I'm writing x plus 3 and plus 2x, it should not reach beyond 91. I hope you understood this much. तो ये हो जाएगा x plus x 2x and 4x हो जाएगा ये, and plus 3 is lesser than 90. So this 4x is lesser than, अब मैं थोड़े क्वेश्चन डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन आप समझ चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा सा डिटेल में डिवाइड वाली प्रोसेसेस और एडिशन वाली प्रोसेस में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। तो कहने का मतलब हुआ कि शॉर्टेस्ट पीस जो है वो सबसे बड़ा कितना हो सकता है, 22 से बड़ा नहीं हो सकता। बट वन मोर कंसेप्ट इज गिवन, एक क्वेश्चन में एक कंसेप्ट और दिया है, सेकंड कंसेप्ट। तो केस 2 वी कैन से दिस वाज अ केस 1, दिस इज केस 2 ना। हम इस केस को देखेंगे तो देखिए यहाँ केस में दिया हुआ है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी 5 एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। थर्ड पीस हमने क्या लिया था, 2x लिया था, दैट शुड बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। तो सेकंड पीस हमारे पास सामने लिखा हुआ है, तो अब इसको भी हम लिख देंगे। तो थर्ड पीस इज 2x, इट शुड बी एटलीस्ट, दिस इज साइन ऑफ एटलीस्ट, शुड बी लॉन्गर देन 5। सेकंड पीस से ये 5 से बड़ा होना चाहिए। तो नाउ वी कैन सी दिस इज 2x is greater than equal to, now we can add, or so we can subtract x from both the side to remove this x, from, sorry, it is 3 only, oh sorry, I subtract x both the side ना, I subtracted x, तो इस x को यहाँ लिख दीजिए, ग्रेट, और x से तो कट जाएगा एटलीस्ट ना। तो ये आंसर सामने आ गया है
कि जो लेंथ आपकी है वो सबसे छोटी लेंथ 8 सेंटीमीटर से छोटी नहीं होना चाहिए और 22 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम लेंथ उसकी जो है 8 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम लेंथ उसकी कितनी है 22 सेंटीमीटर। अगर इस कंडीशंस में आप काटेंगे तो आपको कभी भी तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बट लेसर देन इक्वल टू 26, so the length should be, I think you understood, the length of the shortest piece must be, should be more than or equal to, more than or equal to 8 centimeter but less than or equal to 22 centimeter. I hope you understood this question nicely. So now we will be going ahead in next question. देखिए ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको एक बताना चाहूंगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेगा, एनसीईआरटी मेन बुक में कोर्स बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे। तो आई एम राइटिंग द सोल्यूशन। देखिए कंडीशन ये है कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 2, बट ये थोड़ा सा इस फॉर्म में सॉल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो मैं इसको कैसे लिखना चाहूंगा, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड से। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 इसका हम एलसीएम ले लेंगे 2x माइनस 10 अपॉन एक्स प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 12 और अपॉन एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए मुझे यहाँ से माइनस साइन को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मैंने माइनस साइन पर कॉमन निकाल ले रहा हूँ क्योंकि ये सो माइनस साइन ये मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमको पता है कि अब जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 5 इज लेस देन 0 क्योंकि मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी क्वांटिटी है वो 0 से छोटी होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला केस की क्या होगा, केस 1 में कि x प्लस 2 जो है वो 12 जो है 0 से बड़ा हो एंड x प्लस 5 जो है वो 0 से छोटा हो। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है ना। अब देखिए इस केस में concept of solution that what we have done that x plus 12 either greater than 0 और x plus 5 is lesser than 0। आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हम किसी क्वांटिटी को नेगेटिव रखना है तो एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा और एक को नेगेटिव। so what we can say here, we can say that x plus 12 is greater than 0, it means x must be greater than minus 12 और here x is lesser than minus 5। अब इस सिचुएशन को थोड़ा नंबर लाइन पे देखते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है ना। सपोज दिस इज 0, यहाँ होगा माइनस 5 और यहाँ हो गया माइनस 12। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि नंबर x इज ग्रेटर देन माइनस 12, तो हम ग्रेटर देन माइनस 12 में हम इस साइड जाएंगे। देखिएगा हाँ विल गो इन दिस वे है ना। और x इज लेसर देन माइनस 5, सो हमको उल्टा जाना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। सो देखिएगा ये माइनस 5 देख रहे हैं, इतना पोर्शन जो है वो कॉमन आ रहा है सॉल्यूशन में, देख रहा होगा दिस पोर्शन इज कमिंग कॉमन ना। इसको हम देखते हैं कि दूसरी कंडीशन से सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर तो मतलब एक ही बार में अगर हम बात करें तो x की ऐसी वैल्यू आ सकती है जो माइनस 12 से बड़ी हो माइनस 5 से छोटी हो ना। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हमारे पास आ सकते हैं। नाउ इससे पहले हम देखना चाहेंगे कि सेकंड केस हमारे पास क्या है ना। तो सेकंड केस को जानने के बाद हम समझ जाएंगे कि हमारा सोल्यूशन कहाँ लाए कर रहा है ना। तो सेकंड केस आई एम टेकिंग कि उल्टा होगा x प्लस 12
is less than 0 and x plus 5 is greater than 0. तो x is less than -12 और ये हो जाएगा एंड x is ग्रेटर देन -5. अब देखिए इसको भी नंबर लाइन पे, ये देखिए x का एक सिंगल वैल्यू है, x का वैल्यू जो कि -5 से बड़ा है, देखिए इस पे ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और -12 से छोटा है. देखिए कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, मतलब x का कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जो -5 से बड़ा हो और प्लस -12 से छोटा हो. तो ये तो हमारे पास सोल्यूशन है नहीं. So what should be the solution of this equation? So therefore this is not possible. We'll write not possible. ऐसा कोई चीज पॉसिबल नहीं होगी. तो therefore solution हमारे पास जो ऊपर निकला था वही solution रहेगा. Solution is -12 and -5, जो कि आपने पिछले केस में देखा. देखिए ये वाला solution, ये -12 से बड़ा और -5 से छोटा, that means in this range. ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये हम समझ गए नॉट पॉसिबल केस है. अब देखिए ये केस जो है आपके सामने दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं. ये थोड़े से हाई लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, कह सकते हैं हाई लेवल इन द सेंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिंकिंग होती है. अब देखिए मेरे सामने, इसको समझने के लिए इस चीज को समझते हैं. मेरे सामने एक क्वांटिटी है कि x मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a. अब a को कोई हम एक नंबर ले लेते हैं, सपोज नंबर 9 ही ले लेते हैं ना. अब ये आपको याद रखना कि x की ऐसी वैल्यू हो जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज 9 से बड़ी हो. तो इसका मतलब ये होगा कि ये तभी पॉसिबल होगा कि x जो है वो हमेशा -9 से छोटा हो और या फिर x जो है 9 से बड़ा हो. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर लिखी क्वांटिटी, अब देखिए इस फंडा को समझ गए होगे, -9 से छोटा लेंगे तो मान लो -10, तो -10 की मॉड्यूलस वैल्यू जो है वो 9 से बड़ी होगी, है ना. आप समझ रहे हैं, एक बार फिर से समझिए. अगर ये कंडीशन है तो मॉड्यूलस वैल्यू जो है मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कब कब इस बात को ट्रू करेगी, जब x की वैल्यू -9 से छोटी हो और x की वैल्यू 9 से बड़ी हो. इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, ये किसको इंप्लाई करेगा कि 3 - 4x मस्ट बी लेस देन 9. देखो इस वाली, और दूसरा तरह कंडीशन क्या हो जाएगी कि 3 - 4x इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9. आई होप यू अंडरस्टूड, है ना, समझ गए होगे इस बात को ना. ये वाला केस ठीक है, ये वाला केस ऐसे होगा ना, ठीक है ना. सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो देखते हैं इसमें से सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से 3 को हटाना है. तो आप क्या कर दीजिए, इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर देते हैं. तो 3 - 3 4x इज लेसर देन -9 एंड -9. तो हियर आई फाउंड 4x इज लेसर देन इक्वल टू -12. आपको पता है -4 से डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12. यू अंडरस्टूड दिस बच, है ना, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू आना चाहिए यहाँ पर, 3 से बड़ी वैल्यू. देखिए इसको हम थोड़ा सा नंबर लाइन पे भी देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज को नंबर लाइन पे देखना बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाता है. 0 हो गया और ये 3 हो गया. अब इसमें कहा है सोल्यूशन में कि x की वैल्यू 3 से बड़ी और 3 हो सकती है. तो आपको पता है 3 से बड़ी, तो इसको सर्कल कर दीजिए और ये कैन गो इन दिस वे, है ना, इस डायरेक्शन में आपको जा सकता है. तो कहाँ तक जा सकता है, 3 एंड प्लस इंफिनिटी. एक आंसर ये हो गया, है ना. अब दूसरा केस हम देखते हैं, ये वाला, है ना. देखिएगा इस वाले केस में क्या होता है. तो ये हमारा और केस है, 3 - 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9. इसमें भी हम प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे जैसे हम पहले किए थे. ये 9 और ये -3. तो ये -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो यहाँ -4 से डिवाइड करेंगे तो -4x देन -4 लेसर देन इक्वल टू, साइन समझ गए होंगे, ये मैंने माइनस ऊपर लगा दिए हैं. तो यहाँ हमको ये कंडीशन क्या मिलेगी, दिस कंडीशन विल बी x इज लेसर देन इक्वल टू -3/2. नंबर लाइन पे देखिएगा, ये 0, माइनस का 3/2, ये माइनस इंफिनिटी एंड ये प्लस इंफिनिटी. तो ये बोल रहा है -3 से छोटी, तो ये सोल्यूशन हम आएगा -इंफिनिटी से आपका, सॉरी, -3/2 से इंफिनिटी तक जा सकता है. दोनों सॉल्यूशन वैलिड हैं. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ईदर और वाला केस है, वी हैव टू डू दैट मींस सॉल्यूशन का जो फॉर्म होगा क्या होगा, सॉल्यूशन इज
माइनस इन्फिनिटी 3/2 से माइनस इन्फिनिटी यूनियन 3 to infinity. This is the solution of this problem. So I hope you understood the things nicely. अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रखे हैं, तो इनको आप ट्राई करिएगा. These all are the that means homeworks. I am showing slowly so that आप इनको ट्राई करिएगा. देखिएगा यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बिकॉज अब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सीख गए हैं. सम स्टेटमेंट्स हैं ट्रू एंड फॉल्स, तो इनको आप देख लीजिएगा अच्छे से. So now we are starting part 2 of the video. Part 2 में हम सीखेंगे graphical solution. Okay. I hope you understood the algebraic solutions of linear inequalities and problem based on linear inequalities. So now I am starting part 2. Okay. अब part 2 में देखिएगा क्या है हमारे पास. part 2 में I want to cover the chapter as soon as possible because we are lacking the syllabus. अब देखिएगा यहाँ पर solve the following inequality graphically in 2-dimensional plane. हमको ये जो inequalities हैं आपके सामने 1 to 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. These all inequalities we want to show graphically. Graphically in 2-dimensional plane, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, उसमें इसको हमको सॉल्व करना है. चलते हैं हम आपके साथ. See, there are 2 questions. मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस ले लिए हैं. वो सेम क्वेश्चंस हैं. देखिएगा आपको याद होगा जब मैंने कंसेप्ट आपको बताए थे, तो एट दैट टाइम आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली एंड वेरी नाइसली कि आपको क्या करना है. आपको ध्यान रखना है कि ये जो इनइक्वालिटीज के साइन है उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग इसको प्लॉट करना है. सो देखिएगा मैं सबसे पहले पहला वाला केस ड्रॉ करना चाह रहा हूँ. अगर आप ये ग्राफ पेपर का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा एक्यूरेसी प्लस कुछ चीजें इजीली हो जाएंगी. विदाउट ग्राफ पेपर भी आप इसको कर सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है. देखिएगा मैंने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना लिया है. तो एक कार्टेशियन प्लेन में ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस. दिस इज 0. अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना. देखिए x प्लस वाई इज लेसर देन 5. आपको बताया था मैंने कि यहाँ कोई भी साइन हो, आपको इजी करने के लिए पहले क्या कर लिए, इक्वल टू का साइन लगा लीजिए और एक एक क्वांटिटी को 0 रख लीजिए, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, हमको क्या करना है, यहाँ x ले लिया, ये y. अगर x का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो y आपको 5 मिल जाएगा, और अगर y 0 रखेंगे तो x आपको 5 मिल जाएगा. मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना. तो देखिए ये पॉइंट होगा 0,5. दैट मीन्स ये वाला पॉइंट आएगा 0,5 यहाँ पर, और ये 5,0. 1 2 3 4 5 5,0. तो आप देखेंगे इसको हम ज्वाइन करेंगे. बट हम कौन सा साइन देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए लेसर देन का साइन ना. मतलब हमको याद होगा, हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि इस केस में हमको लाइन को डॉटेड लाइन से डिनोट करना है, बिकॉज इट्स नॉट एक्चुअल पोजीशन. ये हम क्या कर रहे हैं, अजम्पशन ले रहे हैं कि लाइन हमारी यहाँ से जा रही हो, लेकिन इसके नियर पड़ोस में से जा रही होगी. मतलब ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे. तो देखिए ये आपका लाइन चला गया है. ये समझ रहे होगे आप इस तरह का सॉल्यूशन. ये हमारा सॉल्यूशन. ठीक है. तो आप इसको समझ गए हैं. अब इसके ऊपर आप इस इक्वेशन को लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे कि ये सॉल्यूशन इसका है ना. मतलब ये अजम्पशन है कि लाइन यहाँ से पास होगी, इक्वल टू का साइन रहा, बट इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब इससे बड़ी. बड़ी का मतलब होता है कि सॉरी छोटा ना, x प्लस 5 जो है वो मिलाकर 5 से छोटा होना चाहिए. x प्लस वाई जो है, सॉरी अगेन आई वांट टू स्पीक वंस अगेन, कि x प्लस वाई मिलाकर 5 से छोटा होना चाहिए. तो कहने का मतलब ये, अगर इसमें 0 में रख दूं यहाँ पर और यहाँ पर भी 0 रख दूं तब भी ये ट्रू है. मतलब इस सोल्यूशन में ओरिजिन है हमारा. ओरिजिन है तो हमको ओरिजिन की साइड आना है. तो देखिए ओरिजिन की साइड आएंगे हम. ये हमारा ओरिजिन की साइड आना हो गया. तो अब इसको पूरे शेड कर दीजिए. ये पूरा आंसर है आपका. इसके इधर इस लाइन के इधर आप पूरे में जा सकते हैं. यू आर फ्री टू गो. आपके साथ ये देखिएगा मैंने इसको शेड कर दिया है, तो याद रखेगा आपको ये शेडिंग हो गई है ना. तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये आपका शेडिंग, मतलब ये इन दिस डायरेक्शन ना, ये सॉल्यूशन आपका इधर है. आई होप आप समझ गए होंगे पहला सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन, है ना. यहाँ पर थोड़ा सा
इसको समझने के लिए हम और थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे थोड़ा सा गहरा कर दीजिए, ये देखिएगा ये पूरा है आपका, इसको हम शेड कर देंगे ना। आई एम जस्ट डूइंग इन दिस वे। ये आपका पूरा पोर्शन जो है इधर वाला सॉल्यूशन, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। ये शेड कर दीजिए फिर बाद में। तो ये आपका एक ग्राफिकल सोल्यूशन आ गया। अब मैं दूसरा सोल्यूशन आपको दिखाना चाहूंगा, जो दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने है। तो आई होप कि आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी, इसका सोल्यूशन इस तरह से बनेगा। ठीक है, सो आई एम ब्रिंगिंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन पर लेकर आते हैं हम आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके सामने है। तो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मैंने आपको बताया था चाहे वो इक्वल टू का साइन हो, चाहे वो ग्रेटर देन का साइन हो, चाहे लेसर देन का साइन हो, कोई भी साइन हो, आप उसको पहले इक्वल टू के लिए सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y आपको 6 मिलेगा, और y 0 रखेंगे तो x आपको 3 मिलेगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, है ना, कैसे करना है। एक बार मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं। देखो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6। एंड फिर 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3। अब ये समझ रहे होंगे ये वाली बात ना। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। सो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको फिर कार्टेशियन प्लेन को बना लेना है। तो आई थिंक आई शुड टेक द कार्टेशियन प्लेन अर्लियर, थोड़ा टाइम बच जाता हमारा। चलो कोई बात नहीं, हम ट्राई तो करेंगे। तो ये हमारा हो गया वर्टिकल एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस ना। वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर आप जो स्केल ले रहे हैं नंबर का, 1 का गैप लेके या 2 का गैप लेके, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर ना। आप स्केलिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी आपको करनी है, 1 की करनी है, हाफ की करनी है, इट इज अप टू यू। ठीक है, तो ये हो गया x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, y डैश। ओके, हियर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ना। तो हम y की वैल्यू देखेंगे, ये वाला पॉइंट 0,6, तो ये 0,6 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर। एंड 3,0 तो 1 2 3 3,0 ये पॉइंट आएगा। इसको हम ज्वाइन कर देंगे स्केल से डार्क लाइन से, बिकॉज इक्वल टू का साइन भी है। ओके, आप समझ पा रहे होंगे, इक्वल टू का साइन भी है, तो हम यहाँ पर इसको डार्क लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये आपको बता रखा है मैंने पिछले वीडियो में कि हमको कब डार्क लाइन लेनी है, कब डॉटेड लाइन लेनी है। आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है पिछले वीडियो में, तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं भूल जाते हैं। वैसे तो यू ऑल आर इंटेलिजेंट एंड ऑल, तो आपने देख लिया होगा। सो इक्वेशन लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास सिंगल इक्वेशन है, नो मैटर ना, बट जब हमारे पास एक से ज्यादा इक्वेशन होंगी, उस टाइम हमको कंस्ट्रेंट लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो दैट टाइम आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ द थिंग्स, उन ले लीजिएगा चीजों को। इक्वल टू है यहाँ पर, दिस इज ना। अब यहाँ पर है कि ओरिजिन विल नॉट बी देयर, ओरिजिन हमारे सॉल्यूशन में नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 0 रखें तो ना तो 0 कभी भी 6 से बड़ा नहीं होगा, तो ये हमारा ओरिजिन नहीं हमारे सॉल्यूशन में। इसका मतलब हमको बाहर की साइड कंस्ट्रेंट लगाना है। तो आई विल बी डूइंग, देखो इस केस में ये आपको बाहर जाना है ना, ये आपका बाहर, एरो आउटसाइड। ठीक है, ये आपका शेड कर दीजिए। शेड करने का तरीका तो आप जानते ही हैं, शेड कर दीजिए। एक्चुअली शेडिंग नीचे भी हो रही है, पर ब्लैक कलर है इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट शेडिंग इज गोइंग इन दिस वे आल्सो ना। यहाँ पर भी शेडिंग है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ओके। तो इस तरह से आप इस सोल्यूशन को कर सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चीजें बहुत आसान हैं, बहुत टफ नहीं है, इजीली है ना। सोल्यूशन आप अच्छे से समझ गए हैं एक्चुअली ना। तो ये आपको ये सोल्यूशन भी आप अच्छे से आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाउ विल बी गोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वाला केस थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको शेड करने का तरीका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल में
ना करके थोड़ा शॉर्ट में करूँगा। थर्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं 3x + 4y इज लेसर देन इक्वल टू 12। देखिएगा यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हो गया हमारा सॉरी x कोऑर्डिनेट, और y x को 0 रखेंगे, 4 से डिवाइड करिए 12 3 और 0 रखेंगे तो ये हो गया 4 है ना। अब नाउ आई विल बी डूइंग विद द हेल्प, थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं होगा बट देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। देन आपको पता है कि 0,3 1 2 3 0,3 दिस पॉइंट, 1 2 3 4 4,0 ये पॉइंट। देखिएगा ये आपका लाइन शुड बी स्ट्रेट, मैंने आपको स्केल से यूज करना सिखा दिया है। तो अब यहाँ पर ओरिजिन है हमारे सोल्यूशन में, क्योंकि 0 0 रखने पर ये ट्रू होगा, दैट मीन्स वी कैन कम इनसाइड, तो ये साइड में आपको आना है। कंस्ट्रेंट लगाना समझ में आ गया होगा, तो ये सोल्यूशन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो शेड कर दीजिए ना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सोल्यूशन nicely. Then after this your next solution will be फोर्थ क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन को देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, अब आपके सामने y + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। हमको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन लग रहा है या किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा 2x - y है ना, समझ गए होंगे, y को मैंने माइनस कर दिया है। So now totally we can write 2x - y is always less than equal to 8. तो यहाँ पर आपका तरीका वही होगा जो हमेशा हम करते हैं क्वेश्चन को। आप सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू, वैल्यू आप निकालने का तरीका तो आपको पता ही है कि आप पहले x को 0 रखेंगे, फिर y को 0 रखेंगे, तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट y है ना। x को 0 रखेंगे तो y मिलेगा -8, देखिएगा ना, और अगर y को 0 रखेंगे तो x मिलेगा 4। तो यहाँ नेगेटिव x एक्सिस भी आ रहा है, y एक्सिस भी आ रहा है, तो मैं इसको इस तरह से देखो, y एक्सिस हमको पॉजिटिव नहीं है तो हम उसी तरह से सिचुएशन ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर ये x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, -8 यहाँ होगा। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है 0, -8, देखो ये रहेगा 0, -8, ये 0, -8 पॉइंट यहाँ रहेगा, और 1 2 3 4 4, 0 पॉइंट यहाँ रहेगा। इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, सॉरी थोड़ा सा इसको ज्वाइन करने में आप बस ध्यान रखना है कि यू शुड यूज स्केल यूज करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए हमारा ये 0.4 है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये और 0 0 है ना, 0 0 रखने पर ये ट्रू है, दैट मीन्स ओरिजिन है इसमें। तो हमको ओरिजिन है इसमें, तो मतलब हमको कहाँ जाना है, वी हैव टू चेज और वी हैव टू गो टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ओरिजिन की तरफ चल रहे हैं हमको। तो दिस इज द सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन होगा पूरा, ये है ना, तो शेड कर दीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो नाइसली। सो ये हमारा तरीका होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करने के। तो आई थिंक यू कैन डू द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दैट मीन्स ग्राफिकल मेथड का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कि these question will not be difficult। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, लाइक क्वेश्चन नंबर 5, मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। देन हम सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालना चाहेंगे। सो आई वांट टू फाइंड आउट, ये हो गया x एंड y, x को 0 रखेंगे तो y मिलेगा -3, देखो ना, और 0 रखेंगे, देखिएगा यहाँ पर भी समझ के होंगे, y को 0 रखेंगे तो ये मिलेगा हमको 3 2 6 प्लस। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि y एक्सिस हमारा नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है हमको, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको ड्रॉ कर लेंगे। एग्जाम में भी आप ऐसा कर सकते हैं, 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 एंड 3, तो ये पॉइंट हमारा होगा -0, -3 एंड 2, 0, तो ये हमारा यहाँ से पॉइंट जाएगा। ये देखिए इक्वेशन लाइन जो है वो ऐसे पास हो जाएगी। इसमें देखेंगे कि भाई ओरिजिन है कि नहीं। देखिए अगर यहाँ पर 0 जो है वो बड़ा होगा -6 से, डेफिनेटली बड़ा होगा, है ना, समझ गए होंगे कि अगर हम 0 की बात करें तो यहाँ लिखा ना, इट शुड बी दिस इक्वेशन शुड बी ग्रेटर देन
तो दैट मीन्स कहने का मतलब है -6 से ये बड़ी होना चाहिए पूरी इक्वेशन। अब -6 से पूरी बड़ी होना चाहिए मतलब कहने का ये हो गया, सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो ये कहने का मतलब है कि अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पर तो ये कंडीशन में है, मतलब इसमें ओरिजिन नहीं है ना। एक बार फिर से देख लें इस चीज को। देखिए -3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन, इक्वल टू तो है नहीं, ग्रेटर इक्वल टू वाला केस तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ -6 है तो इज ग्रेटर देन -6 ना। तो कहने का मतलब 0, अभी देखो ये बात सच है, 0 जो है बड़ा होता है -6 से, मतलब ये ट्रू है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ हमारा ओरिजिन इसमें है, मतलब सॉरी ओरिजिन हमारा है इसमें ना। कहने का मतलब है ओरिजिन हमारा है ना, क्योंकि ट्रू है मतलब ओरिजिन है, तो मतलब कहने का ये कि वी शुड गो इन दिस वे। अगर आपको ऐसे में कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक काम और कर सकते हैं। देखिए सपोज देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए माइनस, और देखिए एक पॉइंट यहाँ पर आएगा -1 और 1, तो -1 रख के देख लें यहाँ पर, तो भी हमारे पास ये -6 से बड़ी, तो दैट मीन्स ओरिजिन मतलब -6 से बड़ी बात होगी, मतलब हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा। समझ गए होगे। मतलब एक बात अच्छे से ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमको ओरिजिन को चेस करना है, अगर फॉल्स है तो दूर जाना है। सिंपल सी लैंग्वेज। आई होप यू अंडरस्टूड। ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, ये देख ही रहे होंगे आपको ना, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देखिए y इज ऑलवेज लेस देन -2, y जो है -2 से लेस होना चाहिए। तो पहले हम y देख लें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश, -2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। बट ये लेस देन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि ये लेस देन का साइन है। अब इनका कहना है कि y की वैल्यू ऑलवेज -2 से छोटी होना चाहिए, -2 से छोटी होना चाहिए, -2, तो दैट वी हैव टू गो इन दिस वे, है ना, क्योंकि हमको नेगेटिव नंबर मिलेगा तभी -2 से छोटा होगा वो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच nicely. So part 2 was not that much difficult, it was easy to understand. So now we will be going ahead on part 3. मैं पार्ट 3 में लेकर आऊंगा। पार्ट 3 जो है कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पार्ट 3 में, पार्ट 3 जो होगा वो इक्वेशंस मोर देन 2 से ज्यादा इक्वेशन एक साथ होंगी। अभी हम सिंगल इक्वेशंस देख रहे थे, सिंगल इनइक्वालिटीज देख रहे थे, अभी पेयर में होंगी। मतलब पेयर में कहने का मतलब मोर देन 2 और मोर देन 2। देखिए पहला पहला सोल्यूशन हमारे सामने आ गया है, इसको आप देखें बहुत अच्छे से। एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो x क्या है, 1 2 एंड 3, ये हो गया x की लाइन हो गई, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 हो गया। इससे बड़ा, दैट मींस वी हैव टू गो आउट। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, तो 3 ये आउट हो गया। देन 1 2, ये y इक्वल टू 2, यहाँ से लाइन चलेगी, दिस इज y इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 3 थी और दिस इज y इक्वल टू 2। अब इसमें भी बोल रहा है y इक्वल 2 से बड़ी, तो दैट दिस वन ना। अब देखेंगे आप कि एक कॉमन सॉल्यूशन कॉमन होगा। देखिए कॉमन पोर्शन इज दिस ना, तो दिस इज द कॉमन पोर्शन, तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ आएगा, है ना, समझ गए होगे। यहाँ से ये दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन पोर्शन, तो ये आपका इतना पोर्शन जो है, आगे बढ़ाते जाइए इसको, इधर आगे बढ़ाते जाइए, तो इतना पोर्शन आपके सॉल्यूशन में आता जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। कॉमन सॉल्यूशन दैट मीन्स कॉमन कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट जो है वो कॉमनली सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो ही हम सॉल्यूशन डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं। आई थिंक आप समझ गए होंगे ये सॉल्यूशन। ओके, देन विल गोइंग अहेड। अब आगे आप देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आई रोट सम क्वेश्चंस, यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, उनमें से सम क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर लिया, देखिए इसमें से ना, आई होप कि यू हैव लर्न फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आई एम टेकिंग। तो देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन में प्रोसेस तो वही है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको इक्वल टू, लेके हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, ताकि हमको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाए कि लाइन कहाँ से जा रही है। इसके बाद हम उसको कंस्टेंट लगा देते हैं, अगर मोर देन है और लेस देन है तो। x इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा 6, और ये y 0, तो ये हो जाएगा 4। बाकी दो कंस्टेंट तो सीधे सीधे बने ही हैं। तो आई विल बी ड्रॉइंग, मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ अच्छे से एक बार। ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड वेल। वैसे तो हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, अब आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं होगी। सम प्रॉब्लम क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, सम प्रॉब्लम क्वेश्चन दैट मींस मोर देन 2 कंडीशंस वाले प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस हैं वो बच्चे हैं, बाकी तो हमने कर लिया है चैप्टर।
आई थिंक आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे और एक बार देख लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। Then we'll be starting chapter number 7. सो देखिए यहाँ पर हमने ये मैंने ले लिया है x एक्सिस और ये मेरा ले लिया y एक्सिस। दिस इज x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस, है ना। सो अब हम देखेंगे कि हमारा कंस्ट्रेंट तो 1 2 3 4 5 6 7 देन 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखिए 0 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट हो गया 0,6 ना, ये 0,6 और 4,0 1 2 3 4 दिस इज 4,0 है ना। सो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए 1 2 3 4 दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल और रूलर। और आपके पास अगर आप एफिशिएंटली बाय हैंड करना चाहते हैं तो बट इट शुड बी रिमेंबर दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, अदरवाइज सॉल्यूशन सही नहीं आएगा। तो समझ गए होंगे ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन के ऊपर आप इक्वेशन इस लाइन के ऊपर आप इसका इक्वेशन भी लिख दें ताकि आपको याद रहे कि ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 की लाइन है ना। अब x इज इक्वल टू 1 आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, तो दिस इज x इक्वल टू 1, यहाँ से पास होगा ये लाइन। तो x इज इक्वल टू 1 आप देख सकते हैं इसको, दिस इज x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1 हो गई ये लाइन, और y इक्वल टू 2, तो ये y इक्वल टू, देखिए आपको याद है क्लास 9th में हम पढ़ते थे x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, याद रखिएगा ना। ये होगी y इक्वल टू 2। अब आपको कॉमन सोल्यूशन ढूंढना है, एक बार मैं आपको बार बार बोलूंगा कॉमन सोल्यूशन आपको ढूंढना है। सो देखिए y इक्वल टू 2y लाइन है और दिस इज x इक्वल टू 1। तो कंस्ट्रेंट ये है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होना चाहिए, तो हम ऐसे आगे बढ़ेंगे इसमें, और y की वैल्यू 2 से बड़ी होना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना, इसमें आगे बढ़ेंगे आप इस डायरेक्शन। और इनमें दोनों मिला के इस कंस्ट्रेंट में ऑलवेज वैल्यू 12 से छोटी होना चाहिए, तो दैट मींस यू हैव टू कम टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ आएंगे। तो देख रहे हैं आप सारे कंस्ट्रेंट आपको इस छोटे से ट्रायंगुलर एरिया में मिलेंगे। दिस इज योर सॉल्यूशन, ये आपका ट्रायंगुलर एरिया जो है वो का सॉल्यूशन है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, दिस ट्रायंगुलर पोर्शन इज योर सॉल्यूशन ना। इसको हम शेड कर सकते हैं, हमारे पास शेड करने के लिए पेंसिल का यूज कर लें, कोई कलर का यूज कर सकते हैं आप, नो मैटर, है ना। अब मैं इसको अभी शेड करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है आपका, दिस शेडेड पोर्शन इज योर सॉल्यूशन। आई होप आप समझ गए ना। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन वी विल गो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे सामने है 2x प्लस वाई। तो यहाँ पर केसेस हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। x y 0 रखेंगे x तो y 6 मिलेगा, और y को 0 रखेंगे तो x आपको 3 मिलेगा। And similarly you will take the second equation 3x plus 4y is equal to 12। आप सोच रहे हो लेस देन है, बट मैं इक्वल टू ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्ट सॉल्यूशन पोजीशन पता करना है। एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए हम इक्वल टू का साइन दे देते हैं, 0 ये हो जाएगा 3, 0 ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बाय हैंड ड्रॉ करूंगा क्योंकि थोड़ा एक्यूरेसी को साइड रखें, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो आपको तो आ गया होगा समझ में, आप अच्छे से देख लेंगे और इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, कर लीजिए अच्छे से ना। तो y में सबसे बड़ा नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6 ना, और x में सबसे बड़ा नंबर जो है वो 4 है। सो 1 2 3 एंड 4। पहले हम इस लाइन को प्लॉट करेंगे 0 6 1 2 3 4 5 6 0 6, ये पॉइंट हो गया 0 6 एंड 3 0 1 2 3 3 0। तो देखिए ये लाइन हमारी आ गई यहाँ से, इस तरह से जाएगी ये लाइन, ये डार्क लाइन जाएगी क्योंकि इक्वल टू का साइन देख रहे होंगे आप यहाँ पर ना। इसके ऊपर आप क्या कर देंगे, इस पर आप इक्वेशन जरूर लिख दीजिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ इक्वेशन जरूर लिख लीजिएगा, इससे आपको क्या होगा एट द एंड कंस्टेंट लगाना आसान हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ लेसर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हमको यहाँ डॉटेड लाइन लेनी पड़ेगी। तो एक्स ये हो गया 1 2 3 3 0,3 एंड 1 2 3 4,0। देखिए लाइन इस तरह से जाएगी, ये डॉटेड लाइन से आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने एग्जैक्ट पोजीशन ली, लेकिन एग्जैक्टली लाइन तो वहां से जा नहीं रही है। अब इनका कहना ये है कि ये दोनों कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट 6 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स तो आपको ओरिजिन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट शुड गो इन दिस मैनर आउटसाइड, ये आउटसाइड देख रहे होंगे, और ये छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स इट शुड कम इनसाइड। तो आप देख रहे होंगे दिस पोर्शन, ये पोर्शन देखिए यहाँ पर कॉमन दिख रहा है ना आपको, दिस पोर्शन ये आगे जाके बाइट होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा, लेकिन ये आपका सोल्यूशन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से, बहुत आसानी से समझ गए होंगे, है ना। ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशंस हैं जो कि आसानी से हम समझने लायक हैं और आसानी से देखने लायक हैं, हम आसानी से इनको समझ सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट। अब इसमें हमारे पास इस चैप्टर में एक ही चीज बचेगी, मिसलेनियस एक्सरसाइज के सम डेली लाइफ के क्वेश्चंस ना, तो वो मैं क्वेश्चंस आपके सामने करके दिखाना चाहूंगा। देखिए वन मोर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, देखिए एक और मैं क्वेश्चन बताना चाहूंगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। डिफरेंट इसमें एक्सपेक्ट्स होंगे ना क्वेश्चंस के, सो आप इसको समझ लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक्स वाई 0 रखेंगे तो 4 और 0 रखेंगे तो 4 ना, क्योंकि सेम सेम है। इसको समझने के लिए हम लिख सकते हैं 2x इज लेस देन y। अगर आप देखते हैं if you are taking x equal to 0 y also 0, if x equal to 2 y 4, if x is equal to 3 y 6 ना, तो समझ लीजिए इस टाइप का इक्वेशन आएगा। तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे देखिएगा ध्यान से, कंस्ट्रेंट कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ना, 1 2 3 4 5, this is x axis, this is y axis, 0 0 y dash and x dash। तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 4, ये 0,4 1 2 3 4,0, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं और इजीली आपको ये समझ में आ गया, है ना। ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वल टू का साइन था, अब यहाँ इक्वल टू का साइन भी नहीं है और प्लस, तो देखिए 0 0 रखेंगे तो ये वाला पॉइंट, आप 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 2, देखिए x का वैल्यू 1 तो 2 मतलब आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, और 2 रखने पर 4 तो मिल ही रहा है, तो 2 रखने पर 4, दैट मीन्स ये यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा आपको ऐसे सामने। ये लाइन कैसे जाएगी, यहाँ से और डॉटेड लाइन होगी, ओरिजिन से जाएगी, डॉटेड लाइन बनाएगी ओरिजिन से, ये चलिए, है ना। इस पर भी इक्वेशन जरूर लिख लीजिए, इक्वेशन हमारी है x 2x इज इक्वल टू y ना, इक्वल टू केस में ये, अब हम देख रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ x, मतलब यहाँ पर हम ट्वाइस भी करें x का तो भी y कोऑर्डिनेट बड़ा है, तो y कोऑर्डिनेट बड़ा है मतलब इट विल गो इन दिस वे, ये यहाँ पर जाना चाहिए, अभी पॉसिबल है। आप चाहें तो कोई नंबर के लिए चेक भी कर लें, देखो यहाँ पर हम चेक करेंगे इस लाइन में, देखिए ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर कि x का कोई भी वैल्यू लेंगे इसके अंदर हम मतलब यहाँ पर देखिए जैसे मान लो कि 1 कॉमा यहाँ ले रहे हैं ना, 1,4 लेंगे, तो 1,4 लेंगे देखिए तो हमेशा ये y बड़ा होगा, तो इस टाइप इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि हम इस कंस्ट्रेंट को आसानी से समझ सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है इस कंस्ट्रेंट को समझने का कि भाई y एक्सिस में y बड़ा होगा, तो इसलिए हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स y एक्सिस। अब ये बड़ा होना चाहिए 4 से, तो ये शुड गो आउटसाइड, ये बाहर होना चाहिए ऐसे। ये तो आप देख रहे होंगे कि कंस्ट्रेंट कहाँ जाके कॉमनली मिलेंगे, दिस रीजन, ये रीजन आपका सोल्यूशन बन जाएगा, तो ये आपका रीजन जो है वो सोल्यूशन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड नाइसली, इजीली एंड नाइसली, सो इट विल नॉट बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। थोड़ा सा हम टेक्निकल सपोर्ट से पीछे रह जाते हैं कभी कभी, नो मैटर, पर ओके। So I hope you understood this much also. By seeing these all questions, हम समझ सकते हैं, तो और भी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लगा रखे हैं, देख रखे हैं, आप इनको चाहेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। So many questions are there, but all are same, सबके सब सेम होंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। बस मैं क्वेश्चन ये वाला बताना चाहूंगा, देखिए ये ना दिस वन,
x प्लस वाई इज लेसर देन इक्वल टू 9। सो यहाँ तो आपको पता चल ही रहा होगा कि हाउ टू सॉल्व दिस। ये हो गया 0 9 9 है ना। ये x इज ग्रेट y इज ग्रेटर देन x है और यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखिए इसका हम ग्राफ ही ड्रॉ करते हैं डायरेक्टली तो और अच्छे से clear हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हमको नंबर कम पड़ रहा है या जगह कम पड़ रही है तो आप स्केल बढ़ा लीजिए ना, नो प्रॉब्लम ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। तो देखिए ये 9 9 वाला स्केल तो हमारे पास मिल गया है, ये 9 और ये 9 ना। ये वाला लाइन हमको सीधी सीधी मिल गया यहाँ से, ये 9 है। तो यू कैन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वल टू का साइन था। अब यहाँ देखिए वही वाली कहानी, y इज इक्वल टू एक्स, 0 रखने पर 0, 1 रखने पर 1, 2 रखने पर 2, बट ये डॉटेड लाइन होगी क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये लाइन ऐसे जाएगी, देखिएगा यहाँ से ये हो गया ना। इस दिस लाइन इज x इक्वल टू वाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको पता है y एक्सिस पर पूरे टाइम x 0 होगा, इससे बड़ा मतलब आगे बढ़ना है। ये आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ y एक्सिस बड़ा है ही तो वी हैव टू गो इन y एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन में हमको जाना है क्योंकि y की वैल्यू बड़ी है यहाँ पर और इसमें सबसे सब कुछ छोटा। आप समझ गए होंगे कि कौन सा रीजन हमारा सॉल्यूशन को होगा। दिस इज द रीजन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे सारे रीजन सॉल्यूशन के आ गए हैं, आसानी से हम समझ चुके हैं। अब हमको ग्राफिकल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होगी। आई थिंक वी अंडरस्टूड नाइसली। क्या कहते हैं बच्चा लोगों? आई होप यू अंडरस्टूड नाइसली। आई वांट टू टेक सम क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि थोड़े से अलग होंगे, ज्यादा अलग तो नहीं होंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, देखिए, रीड द क्वेश्चन नाइसली। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो मैं इनको एक बार कवर करना चाहूंगा। तो यहाँ हमने क्वेश्चन में लिखा है अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ a 12% solution of acid. How many liters of 30% acid solution must be added to it so that acid contained in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%? मतलब हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशंस हैं ना, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए हमारे पास कितना 600 लीटर है, तो एक मान लीजिए कंटेनर है, सपोज दिस इज अ कंटेनर, थोड़ा सा ऐसे रफली कंटेनर बना ले रहा हूँ। ये कंटेनर है, इसमें कितना रखा है? 600 लीटर सोल्यूशन रखा है और उसका कंसंट्रेशन है 12%। हमको हाउ मेनी लीटर्स, मान लो हमको नहीं पता है कि भाई हमको ये जो दूसरे कंटेनर में सोल्यूशन लेना है वो हमने x लीटर ले लिया मान लीजिए ना, इसका कंसंट्रेशन जो है वो 30%। अब इसको मुझे इसमें ऐड करना है ना। ऐड करने पर जो रिजल्टेंट मिलेगा, देखिए हाँ रिजल्टेंट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? रिजल्टेंट आपका 600 लीटर तो है ही और प्लस इसमें क्या आ जाएगा? x लीटर। अब इसका जो कंसंट्रेशन है, दिस कंसंट्रेशन इज, मतलब इस कंसंट्रेशन को मान लो मैंने ले लिया है, क्वांटिटी को Q ले लिया है। दिस कंसंट्रेशन क्वांटिटी शुड बी मोर देन 15%, इसमें कंसंट्रेशन हो, बट लेस देन 18%। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का मीनिंग, है ना। तो इसका मैं सोल्यूशन दूंगा आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने क्या करना है, मैंने सपोज कर लेना है पहले कि लेट कर लेना है, लेट x लीटर of 30% acid solution is required ना, ये required हमारे पास is required to added है ना। तो कहने का मतलब हमारा टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, इट विल बी इक्वल टू 600 लीटर तो पहले ही था, अब x लीटर और आ गया, टोटल हमारा हो गया 600 प्लस x लीटर। अब कंडीशन ये है कि देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमने क्या लिया है? 30% लिया है। देखिए केस, अब हम केस यहाँ पर बनाते हैं तो हमने क्या लिया है? नाउ देखिएगा, समझिएगा इसी को। 30% ऑफ x, आपने 30% लिया है x का क्योंकि x लीटर लिया है, और प्लस 12% ऑफ किसका? 12% देखिएगा आपने यहाँ पर 12% लिखा है ना, 12% ऑफ इसका 600 का।
ऑफ 600, ये जो है रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट हो गया बिकॉज ये मिक्सचर, दिस शुड बी मोर देन 15%, कितना होना चाहिए 15% ऑफ 600 प्लस एक्स, इसका ज्यादा होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे पहली कंडीशन, है ना। ये कंडीशन को अब पहले इस कंडीशन को हम सॉल्व कर लें चाहे तो, और नहीं तो हम दूसरी कंडीशन भी पहले लिख सकते हैं, है ना। फिर से देख लें एक बार, 30% ऑफ एक्स हमने ये मिलाया है, इसमें 12% में टोटल हमारा मिक्सचर जो है, दिस मिक्सचर इसमें लिखा है ना मोर देन ना 15% से के से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया 30/100 इंटू एक्स प्लस 12/100 इंटू 600 इज मोर देन ना, एज मोर देन और इक्वल टू ना, एटलीस्ट बोल रहा है और ओनली मोर देन बोल रहा है ना। एक बार देख लेंगे ध्यान से, कंटेंट मोर देन विल बी मोर देन, तो हम यहाँ पर सिर्फ इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे क्योंकि मोर देन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, छोड़ देंगे, मोर देन 15/100 ऑफ 600 प्लस एक्स, है ना। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायरेक्टली 100 हट गया, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है ना। ये हो गया 12 इंटू 600 इज ग्रेटर देन, सॉरी 15 एंड दिस इज 600 प्लस एक्स। तो यहाँ हम देखेंगे कि फिर से हम इसको किससे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 6 30, हाँ 5 से कर सकते हैं, 5 6 30 12 एंड ये हो जाएगा 5 1 5 1 कैरी 5 2 120 एंड 5 3 15 देन 600 प्लस, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 1440 is greater than, this is 6 3 18 and this is 3x, 3x माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3x प्लस 1440 is greater than 1800। आई एम जस्ट नॉट राइटिंग दिस 3 क्यों, 3 वहां चला गया, ऐसे समझ लो कि हमने प्रोसेस कर ली है। दिस इज 3x and is greater than 1800 minus 1440, so 3x is greater than, कितना बचेगा 0, then 6, then ये हो गया हमारा 7 माइनस 360, तो x is greater than 120 लीटर, मतलब कम 120 लीटर से आपको ज्यादा मिलाना है। आप देखते हैं कम वाली कंडीशन कौन सी आती है ना। दूसरी कंडीशन भी हमको सेम लेनी है, एंड 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 इज लेसर देन 15% ऑफ, नहीं कितना परसेंट था 18%, सॉरी 18% सेकंड केस में, लेस देन ये 18% ऑफ 600 प्लस एक्स। आई होप आप समझ गए, दिस इज द सेकंड कंडीशन। 30/100 इंटू एक्स, ऑफ एक्स नहीं लिखा, सॉरी एक्स प्लस 12% ऑफ दिस ऑफ, तो 12/100। आई होप आप समझ गए हो, मेरे से थोड़ी सी चीजें मैंने मिस कर दी थी, 18/100 इंटू 600 प्लस एक्स, फिर वही 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी, फाइल बहुत बड़ी हो गई ना, सो इट इज नॉट कॉर्डिंग, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30x प्लस 1 2 इंटू 600 लेस देन 18 देन 600 प्लस एक्स, है ना। इस बार हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 30 5x एंड 6 2 12, दिस इज 600 एंड 6 3 18 600 प्लस, so you get 5x and 6 2 1200 and this is x, this is 1800 and this 3x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ मुझे ना, 2x and this is 1800 minus 1200, so 2x is less than what will come here 600, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x is less than 300, मतलब 300 लीटर से कम और 120 लीटर से ज्यादा। तो हमारा जो रेंज है, इसकी कंसंट्रेशन जो रेंज है, तो x लाइज बिटवीन मोर देन 120 लीटर बट लेस देन 300 लीटर। इस कंडीशन में आपका डाइल्यूशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। सेम टाइप के क्वेश्चंस यहाँ होंगे, 2 इक्वेशंस आपको दी रहेंगी,
दो कंडीशन दी रहेंगी एक ही क्वेश्चन में, आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम कंडीशन देखिए यहाँ पर भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन 11 सॉल्यूशन टू बी केप्ट बिटवीन, किसके बीच में रखना है आपको 68 फ़ारेनहाइट एंड 77 फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको किस में रखनी है, कम से बिटवीन, तो ये इसके बिटवीन है तो उसको 68 और ये 77 है ना। अब देखिएगा यहाँ पर हमको किस में निकालना है कि सेल्सियस में क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास सामने लिखा है ना, तो व्हाट विल बी द रेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो सेल्सियस की वैल्यू रख दीजिए 68 और यहाँ लग देंगे 9/5C प्लस 32 लेस देन इक्वल टू 77 है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले 32 माइनस करें, सबसे 32 माइनस करेंगे सबसे, तो आपके पास आ जाएगा देखिएगा 32 सब्ट्रैक्ट करने से 68 माइनस 32 लेस देन इक्वल टू 9/5C एंड लेस देन इक्वल टू 77 माइनस 32, तो यहाँ बचेगा आपका 6 एंड 336 बचा यहाँ पर, ये 9/5C लेस देन इक्वल टू यहाँ आपका बचा 45 है ना। तो 9 से डिवाइड करते पहले, 9 4 जो 36, 1/5 इजी कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, और 9 5 जो 45, 5 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो तो 20 C हो गया यहाँ पर एंड 25, so that means temperature range is coming 20 degree Celsius to, what's the temperature range, 20 degree Celsius to 25 degree Celsius। तो आप आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में, ये इट्स ऑल्सो इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से समझने वाला क्वेश्चन है। तो ये हमारा 20 डिग्री से 25 के बीच में आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो आई वांट टू टेक, देखिए ये क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन, देखिए मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हमारे पास सॉल्यूशन है कुछ, कितना सॉल्यूशन है हमारे पास solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution. The resulting mixture to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have कितना हमारे पास 640 liters of solution of 8% boric solution, हमारे पास जो कंसंट्रेशन है 8% कंसंट्रेशन वो कितना है 640 है। फिर वही बात भी बात आ गई, हमने यहाँ से x लीटर्स हमने क्या ले लिया, ये x लीटर ले लिया, कितना परसेंट वाला 2% वाला, तो रिजल्टिंग कितना बनेगा हमारे पास, रिजल्टिंग बनेगा वही कंडीशन यहाँ बनेगी 640 प्लस x लीटर, इसका जो रिजल्टेंट है दिस रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू मोर देन 4% बट लेस देन 6%, ये इस पेज में आना चाहिए ना। आई विल बी फॉर्मिंग द इक्वेशन, तो मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, आप इसको सॉल्व करिएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे, नाउ वी विल बी राइटिंग, वेट वी आई डोंट हैव द पेज, तो यहाँ हम लिखेंगे 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x इज मोर देन इक्वल टू ना, मोर देन इक्वल टू, और मोर देन से सपोज इट इज रिटन मोर देन, वी विल राइटिंग मोर देन 4% ऑफ 640 प्लस x, इक्वेशन ये बन जाएगी। एंड दूसरी कंडीशन हो जाएगी हमारे पास 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x is less than 6% of 640 plus x. I hope you will be doing these type of questions nicely. इनको आप solve कर लीजिएगा, तो now you will get your solution. So my dear children, we completed chapter number 6. I hope you will be doing. If you will have any problem, any doubt, any queries, you can ask in regular classes. Till then, dear children, take care. And after that, we will be starting chapter number 7, permutation and combination.